हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम लोग रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 रिव्यू करने वाले हैं। आई विल टेल यू हाउ मेनी कलर्स वी हैव इन इनफील्ड मीटियोर एंड और इसके फीचर्स कैसे हैं। तो लेट्स गेट द रिव्यू स्टार्टेड। Let's start the review from the Royal Enfield all new console, the digital console plus manual, and it is a tripod console which you will see in Royal Enfield Meteor. You can see in the daytime the visibility is top notch. Okay, so when we talk about this Royal Meteor 350cc segment, in which the Royal Enfield have replaced their old Thunderbird and Thunderbird X. So they have recently launched this Royal Enfield Meteor, which you can see, and this engine design was done by Indian and England team of engineers, and they have come up with a new design for this Royal Enfield Meteor 350. So before we go further, let me show you the thumb noise, their signature noise. Let me show you how to start in this Royal Enfield Meteor. We have a different buttons. So engine quill switch and also the start button is the same. So now I have started this one, so we will listen the sound. So as you have heard, जैसे कि आप लोग ने सुना है, so still Royal Enfield have retained their original sound. जो है वो अभी तक वही है। तो जो नया डिज़ाइन करे हैं इंजन, वो इंजन के हिसाब से भी still you can see that Royal Enfield का thumb जो है अभी भी उसमें है। So when it comes to this engine, let's talk about this engine. So this engine comes with fuel injected, so there is no carburetor for this engine. That's why you don't see a kick in this specific bike. So in the old engines for 350cc, there used to be a 346cc, but now, as I told you, the team of engineers वो लोग जो है ये newly जो है introduce करे हैं ये engines with 349 AC engine, and that's why you see a vibration is much in control when we compare to the old Royal Enfield bikes. And the short gear system, if you see here, so the gear जो system है उसका completely छोटा हो चुका है, इसीलिए उसी की वजह से जो है आपको वाइब्रेशंस जब आप जाओगे टॉप क्रूजिंग स्पीड्स पे, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, ये ओनर रॉयल इनफील्ड के लोग बोल रहे थे 80 to 100 तक जो है ना इसकी स्वीट स्पॉट है, जिसमें आप जो है कोई भी किस्म का वाइब्रेशन नहीं देख सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर फिगर्स। सो दिस 349cc का जो इंजन है वो प्रोड्यूस कर रहा है 20.2 bhp at 6100 rpm and 27 newton meter of torque at 5000 rpm, and this is a 5-speed gearbox, so you don't get 6 gears in this bike.
and based on the company review, the mileage could be for the city rides could be 34 kilometers, and for highway it is 37 kilometers. And if you see here, the Royal Enfield have also introduced a double chassis in their new bikes. जो Royal Enfield के जो Meteor है, ये जो बाइक बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, ये भी डबल चेसी पे आ रही है. So they have get rid of their single chassis. Let's talk about the tires. So the front tires come with 100 by 90, which is 19 each, and the rear tire come with 140 by 70. You can see some bulgy tire on the rear side, and this is of a 17 inch. And front side you can see this is a telescopic front shock absorber, whereas on the rear side you get twin shock absorbers. You can have a look in this video. And this bike also come with a dual channel ABS, where the rear disc is of 270 mm, and the front you get 300 mm of a disc, which is from Biber. And the total curb of this bike, the weight of this bike is 191 kgs कि ये टोटल बाइक का जो है वेट है. और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा है, 170 mm, जो इंडियन रोड्स के लिए सफिशिएंट है. लेट्स वी कैन सी द फ्रंट headlamp comes with an halogen, and you also see a daylight LED. So the main bulb is not a LED one, it is a halogen one. And these wheels are alloy wheels, so Royal Enfield has completely changed their wheels to the alloys one. Alright guys, it's time to go for a short ride. थोड़ा ये गाड़ी को चलाकर देखेंगे कि इसका कंट्रोल, ब्रेकिंग सिस्टम और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी कैसी है ट्रैफिक में. सो चलिए गाड़ी निकालता हूँ मैं अब. ओके, सो अभी मैं जैसा टर्न ले रहा हूँ, लेट मी सी द रेडियस. वाओ गाइस, इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही छोटा है. मैं समझ रहा था यूजुअली रॉयल इनफील्ड के बाइक्स का थोड़ा टर्निंग रेडियस जो है थोड़ा बड़ा रहता है. और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसका पूरा जो है अपराइट पोजीशन है बाइक का. अपन जो बैठते हैं बाइक लेकर, तो कंफर्ट इज़ कम्प्लीटली गुड, इट विल बी गुड ऑन दिस बाइक. अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स या सिटी राइड करोगे आप, तो इसकी थोड़ा सीटिंग पोजीशन सामने आपका जो है पैर फुट रेस थोड़ा आगे है, और जो है हैंडल थोड़ा ब्रॉड होने से आपको जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है. चलिए मैं रोड पे निकल चुका हूँ. ट्रैफिक बहुत है, सो आई कांट गो ऑन अ वेरी हाई स्पीड, लेकिन मैं देखूंगा जहाँ पर भी खुली रोड मिलेगी वहाँ पर थोड़ा मैं गाड़ी को जो है स्पीड करके देखूंगा कि इसका पिकअप कैसा आ रहा है, इनिशियल पिकअप. तो अभी तक जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसका इनिशियल टॉर्क बहुत ही प्यारा है व्हेन आई कंपेयर टू द प्रीवियस रॉयल इनफील्ड बाइक्स. तो ये ज़्यादा देर नहीं लेती है जो है अपने को स्पीड अप होने के लिए. एंड द वेरी गुड थिंग विच आई हैव नोटिस्ड, मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है, जैसे कि मैं हैंडल टर्न करने की कोशिश करूँ या मैं जो है लेफ़्ट या राइट करूँ, तो बहुत ही क्विकली टर्न होता है. देखिए मैं अभी जैसे टर्न लिया तो ये बहुत ही क्विकली टर्न हुआ है, और अभी ब्रेक सडन अप्लाई करा था. बहुत ही जो है ना पंची ब्रेक है, फ्रंट ब्रेक. और ये टाइप के बाइक्स में तो यूजुअली आप 70% का सामने का ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हैं और 30% पीछे का यूज़ करना है. तो उसके हिसाब से आई फील कि बहुत ही अच्छा ब्रेक है. नाउ आई एम क्रूजिंग एट द स्पीड ऑफ 70 to 80. बहुत स्मूथली, इट इज़ अ बटर स्मूथ. आप जैसे ही थ्रॉटल करोगे, गाड़ी जो है पिकअप पकड़ना शुरू करती है. जैसा कि ये जो है
यूजुअली ट्विन स्पॉट होता है। यहाँ पर जो आप देखेंगे मैनुअल और 2 ऑटोमेटिक डायल्स है इसके स्पीडोमीटर में। जो राइट हैंड का छोटा स्पीडोमीटर है उसमें आप जो है रॉयल इनफील्ड का जो मैप का जो है आपको ऐप है जो डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे आप ईज़िली उसको जो है आपके जो है नेविगेशन सिस्टम को जो है आपके छोटे डायल में वो दिखेगा। एंड एक बात बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर, आपको कोई कॉल का नोटिफिकेशन इसमें नहीं आएगा क्योंकि रॉयल इनफील्ड ने कहा है ये प्योर। सो रॉयल इनफील्ड क्लेम करता है कि सेफ्टी ऑफ देयर कस्टमर, वो लोग जो है नेविगेशन में कोई कॉल नोटिफिकेशंस नहीं रखे ये बाइक में, जो एक सेफ्टी फीचर की तरह है। चलिए आगे बढ़कर देखेंगे अपन स्लोली। अभी यहाँ पर तो बहुत ट्रैफिक है, एक्चुअली हैदराबाद का बहुत ट्रैफिक जोन माना जाता है। तो देखेंगे अपन ये एक सर्कल पार होने के बाद मैं आपको बताऊंगा थोड़ा और स्पीड करके। एंड एक चीज़ और एक नोटिस करा हूँ मैं ये बाइक चलाते हुए, इसकी जो गेयर्स पोजीशंस है और गेयर जो अपन डालते हैं, मुझे अभी तक एक भी वक्त फॉल्स न्यूट्रल नहीं हुआ है। तो गेयर्स आर वेरी स्मूथ एंड ईजी टू हैंडल। यूजुअली होता क्या था रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक में आप जो है यूजुअली लोअर स्पीड्स पे आपको जो है गेयर चेंज करना पड़ता था, लेकिन ये ऐसा डिज़ाइन किया हुआ इंजन है जिसमें अगर आप 5th गियर में भी हो, अगर आपकी स्पीड 35 किलोमीटर्स हो, स्टिल जो है ना आप मैनेज कर सकते हैं और स्पीड अप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर सिग्नल है, लेट मी स्टॉप हियर फॉर सम टाइम। सो यहाँ पर मैं अभी यू टर्न लिया हूँ, सो मैं अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो लेट मी स्पीड अप माई बाइक। देखेंगे यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस है, देखेंगे थोड़ा स्पीड अप करके। ओके, नाउ आई एम अप्लाइंग सडन ब्रेक्स। तो गाइस बहुत ही प्यारे ब्रेक्स है, आई लव्ड इट। आई एक्चुअली मैं जो है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 चलाया हूँ, तो वहाँ उसमें मुझे बस यही प्रॉब्लम दिखता था कि सडन ब्रेकिंग कभी कभी पंची नहीं होती थी। बट लेकिन मीटियोर में वो लोग बहुत ही डेवलप करे हैं ब्रेक्स को, एंड ट्रस्ट मी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है चलाने, बिकॉज आई हैव अ कॉन्फिडेंस कि मैं मेरी गाड़ी रोक सकता हूँ। तो देखेंगे बस अभी ट्रैफिक में आप देख सकते हैं कि मेरा हैंडल मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही स्मूथ है, तो मुझे कोई भी जो है टेंशन नहीं कि मैं निकाल सकता हूँ या नहीं। मैं पहले ही डिसाइड करके देखेंगे आप, मैं जैसे ही ओवरटेक कर रहा हूँ कोई भी बाइक को, इसका जो हैंडल मैन्यूवरिंग है बहुत ही स्मूथ है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर माई video to your family and friends. And for my existing subscribers, you can share my video and you can like my video and also do comment if in case you have any feedback which you need to pass on. And also guys, stay tuned to my further videos, so you have a great day ahead. See you all in next video, and don't forget to hit a subscribe button. See you all in next video. Bye bye.